Welcome to Student Faculty Development Program on Role of Engineer in Uplifting the Industry Imposed COVID-19 Lockdown in India. This program is brought to you by Department of Mechanical Engineering of Sandeep Foundations, Sandeep Institute of Engineering and Management, Nasik. Before starting the session, first introduce our today's speaker, Mr. Anil Suradkar. Currently, he is working in a solar power project and personal finance from last 7+ years. He has more than 14 years of experience at senior management in various organizations, diversified experience including personal finance management, marketing strategies, growth management, store operations from telecom and strategy partnership. He organized and participated in 150 plus various seminars, webinars, conferences, and exhibitions on solar power projects and personal finance in India. He worked with the Tata Sky Limited in Mumbai as Senior Area Sales Manager for 2 years. He worked with Reliance Communication Limited in Mumbai as a Deputy Manager for Customer Operations Service Delivery for more than 4 years. He completed MBA Marketing from ICFAI National College in 2006. He completed his BCom from Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad during 2004 to 2006. So why to wait? Let's listen Mr. Anil Suradkar. I am Anil Suradkar from Aurangabad. I received a call from Kulkarni sir that they are looking to get some input as far as post-COVID situation and the role of an engineer in that particular situation. And since we have a good relation with Kulkarni sir, I couldn't deny it. So that's the reason that I have taken this particular step and getting recording for you guys. So thank you so much. First of all, I really acknowledge Kulkarni sir for taking continuously follow for getting the video. And also would like to say thank you and really acknowledge Mishra sir for supporting technically as far as this concern is this video is concerned. So let me introduce myself before taking the actual topic. My name is Anil Suradkar, as I said earlier. I am working from last 14 years in an industry. I worked in telecom, I worked in DTH industry, I worked in food industry, I worked in finance, and I'm currently working in training and development as well as solar industry. So this is a small introduction of mine. What I personally believe that the role of an engineer post lockdown is very, very important and vital. You know guys, why? Because if somebody asks me that आज के डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट जो है अलग अलग कंट्रीज़ कौन से कंट्री से करती है, इवन हमारे हाथ में जो मोबाइल है, जो लैपटॉप के ऊपर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी कमिंग फ्रॉम चाइना. बट कोविड-19 ये वाला सिचुएशन की वजह से आज के डेट में सारे दुनिया के लोग जो है वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन. तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो ओपन अप हो रही है. ओके, नो डाउट ये जो स्लो डाउन है पोस्ट कोविड, देयर वुड बी सम लाइक पैनिक इन द मार्केट, और उस पैनिक के चलते हुए कुछ टाइम तक ये वाला जो रहेगा, मे बी 6 months और पर्टिकुलरली 1 year के आसपास ये वाला सिचुएशन रहेगा. बट एज अ होल वर्ल्ड सारे लोग जो है इंडिया की तरफ एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब या डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं. सो इसके अंदर नो डाउट इंजीनियर्स का रोल बहुत ही अहम है. अगर हम पहले देखते थे कि प्री कोविड सिचुएशन, इसके अंदर इंजीनियर्स का रोल जो था वो लिमिटेड था. ओके, बट अभी जो है हमारे ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है. तो उसके लिए हम लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा. इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे स्किल्स जो है आपको डेवलप करने होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी. ओके, अभी मैं भी आई थिंक जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आई मस्ट हैव फिनिश्ड मोर देन 5 to 6 books. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव टेकन कपल ऑफ जूम मीटिंग्स. कई सारे प्रोग्राम्स के अंदर मैं एज अ स्पीकर करके गया था, कहीं पे मैंने अटेंड किए कई सारे लोगों के प्रोग्राम्स. तो ये सारा जो चीज़ है, आई हैव यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर लॉकडाउन in order to upgrade myself. I don't know what about you. Okay,
अगर आपने अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है आपको खुद को अपग्रेड करने के लिए, आई थिंक दिस इज़ अ राइट अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू अपग्रेड योरसेल्फ। अब हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन की पहले क्या थी और अब क्या है, या पोस्ट लॉकडाउन के बाद में क्या होगी। सी, इंडिया के अंदर एक स्टेबिलिटी जो है वो आ रही थी, ओके, नो डाउट अप्स एंड डाउन्स मार्केट में हुए और कुछ हद तक स्टेबिलिटी आ ही रही थी, तो अचानक से ये लॉकडाउन जो है हम लोगों को करना पड़ा और उसके वजह से हम लोग जो है काफ़ी हद तक इंडस्ट्री में पीछे चले गए। ओके, अभी मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी इंडस्ट्री है, कई सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में जैसा मेरा इंटरेक्शन होता है तो उन लोगों से बात करने के बाद में पता चलता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर अब वो फेस करने वाले हैं दैट इज़ अ फाइनेंशियल इशू। ओके, बट ये फाइनेंशियल इशू इंडिया जैसा कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो 130 करोड़ की आबादी में कंजम्पशन जो है वो डेफिनेटली होगा। सिर्फ प्रायोरिटाइज जो है ना वो करेंगे लोग, और प्रायोरिटाइज करके उसके अंदर वो लोग जो है वो एक्सपेंडिचर करेंगे कुछ महीने के लिए, कुछ सालों के लिए, और एज आई सेड अर्लियर वो 6-8 महीना 1 साल तक वो चीज़ हो सकती है। अभी इसके अंदर हम लोगों का इंजीनियर्स का रोल जो है वो बहुत अहम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 5-10 साल के अंदर बहुत सारी स्कीम्स जो है वो निकाली थी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू कम एज एन एंटरप्रेन्योर। मैं सबसे पहला वाला जो मुझे दिखता है पोस्ट लॉकडाउन, तो सबसे पहला ऑप्शन मुझे जो नज़र आता है एज पर एज इंजीनियर्स की तरह, या तो किसी भी जो लोग आज की डेट में स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, कि वो कोई जॉब करने की बजाय उनका खुद का कुछ स्टार्ट करने की सोचे। ओके, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कि द होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग इंडिया एज एन डेस्टिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके अंदर हम लोग किसी भी फील्ड में, हम लोग आईटी फील्ड में रहने दो, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग होने दो, सिविल इंजीनियर हो, या कोई भी इंजीनियरिंग फैकल्टी आपकी हो, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर फैकल्टी, अगर आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करते हैं तो उसके लिए जो भी कंपोनेंट्स लगेंगे उसमें कई सारा सपोर्ट जो है दुनिया की तरफ से हम लोगों को आने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और अगर आपके पास में कोई इनोवेटिव आइडिया है तो देर आर पीपल दोज हु कैन इन्वेस्ट ऑन योर आइडिया। द ओनली थिंग इज़ दैट आपको उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास में बहुत ही बेहतरीन आइडिया है इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी। मेरे कई सारे स्टार्टअप रिलेटेड जो लोग सपोर्ट करते हैं उन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में रिलेशन है। इवन आई हैव इन्वेस्टेड इन सम ऑफ दी पीपल्स जो नया कुछ चालू करने वाले, उनके बिजनेस में मैंने एज ए इन्वेस्टर करके इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये वाला जो पहला वाला ऑप्शन है कि सब इंजीनियर्स के सामने या सब स्टूडेंट्स के सामने पोस्ट लॉकडाउन कि मैं अपना खुद कुछ चालू कर सकता हूँ क्या, जस्ट आस्क योर सेल्फ। नो डाउट उसके लिए बहुत सारा हम लोगों को बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि आपकी फैमिली आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है नहीं है, आपकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है क्या नहीं है। देर आर कपल ऑफ थिंग्स विच नीड टू बी कंसिडर्ड एंड बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू टेक और वी नीड टू अराइव ऑन सम सोल्यूशन। ओके, ये वाला हो गया पहला थिंग। दूसरा वाला चीज़ जो मुझे लगता है कि देर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स विच आर देयर, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और अगर आपकी कोई स्किल्स है उस स्किल सेट को लेकर के आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एज अ फ्रीलांसर करके काम कर सकते हो। ओके, तो आप लोगों को हो सकता है पता है या नहीं पता है, बट मैं 2-3 नाम आपको बता दूंगा, बाकी चीज़ें जो है आप गूगल में सर्च करके मिल सकती है आपको। तो इसमें फाइवर नाम की कंपनी है, देन अपवर्क नाम की कंपनी है, फ्रीलांस करके कंपनी है। ये कंपनीज जो है दीज आर ऑल प्लेटफॉर्म्स। ओके, फॉर एग्जांपल आप लोगो बहुत अच्छा डिज़ाइन करते हो और यू आर वेरी गुड आर्किटेक्ट, आपको
कोई डिज़ाइन या कोई ड्राइंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, कैट ड्राइंग है उसके अंदर आप कुछ बना सकते हो, तो आपकी जो भी स्पेशलिटी है उसके अंदर आप डालिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि वर्क एटलीस्ट 6 months फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, वहाँ पे आपको $5 से काम करना होगा, तो आपका मिनिमम चार्जेस उसके अंदर रखिए। जैसे जैसे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा पीपल विल फॉलो यू। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है, वर्क फ्रॉम होम भी हो जाएगा और उसके अंदर आप जो है फ्रीलांसर की तरह काम भी कर पाएंगे, एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट अर्निंग। ओके, और जो स्टूडेंट अभी 3rd ईयर 2nd ईयर में है या 1st ईयर में, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अंदर आप चेक करिए कि कौन से स्किल रिक्वायर्ड है, बिकॉज आज के डेट में हमारे कई सारे कॉलेजेस में ये वाला सिचुएशन होता है कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, बाय द टाइम हम लोगों का इंजीनियरिंग या कोई भी जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब तक इंडस्ट्री में नया कुछ आ जाता है। ओके, और उसको फिर हम लोगों को कोप अप करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप ये वाले प्लेटफॉर्म के साथ में कनेक्टेड रहेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द न्यू ट्रेंड्स इन द मार्केट, एंड बेस्ड ऑन दैट आप उन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। ओके, सो ये वाला चीज़ मुझे सेकंड ऑप्शन लगता है। थर्ड ऑप्शन, एज एन एम्प्लॉय अगर आप सोचते हैं कि पोस्ट लॉकडाउन मैं मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाएगा और मैं अगर कहीं पे जॉब लेने के लिए जाऊँ तो इमीडिएटली मेरे को जॉब ऑफ़र कर देंगे। ओके, तो मुझे ऐसे लगता है कि अनटिल एंड अनलेस आपके पास में बहुत कुछ स्किल्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम द डिग्री जो है सिर्फ आपको एंट्री करने के लिए काम में आएगी, बट आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपके जो बाकी ट्रेड्स है वो आपके कैसे हैं, वो सारे पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे और बेस्ड ऑन दैट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला सवाल जो है वो हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि मेरे पास में भी कई सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सोलर इंडस्ट्री में हम लोगों को काम करना है तो क्या करना है, तो मेरा यही उनको एक सवाल होता है कि आपने मतलब जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में आपने कौन कौन सी नई चीज़ें सीखी है, कौन कौन से नए बुक्स आपने पढ़े। अगर इसका जवाब मेरे को निगेटिव आता है, इट मीन्स कि द पर्सन विथ हुम आई एम स्पीकिंग इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन लर्निंग। और जो स्टूडेंट लर्निंग में इंटरेस्टेड नहीं है, आज के डेट में कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे पर्सन को उसके यहाँ पे जॉब नहीं देगा। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी जॉब मिलनी चाहिए तो बी अ गुड लर्नर, देन एंड देन ओनली इट विल बी पॉसिबल दैट यू विल गेट अ गुड जॉब। तो शुरू में ये भी हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको जॉब मिले ना, बट आई वुड सजेस्ट कि ये वाला जो पीरियड है ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट पीरियड है, क्योंकि कुछ काम नहीं करते हुए भी उन लोगों को एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना पड़ता है। जैसे मेरा एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर जो लोग काम करते हैं उन लोगों को, हम लोगों का भी रेस्टोरेंट बंद है तब भी मेरे को उनको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कुछ सोलर के अंदर मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों को भी पेमेंट करना पड़ेगा, बावजूद उसके कि दे हैव नॉट वर्क, बट टू सपोर्ट देम मुझे ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। एंड दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू हैपन फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो। तो उसके अंदर वो नए लोगों को रिक्रूट करके और उनका लाइबिलिटीज़ जो है वो नहीं बढ़ाएंगे। तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि अपग्रेड योर सेल्फ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम इन ऑर्डर टू अपग्रेड योर सेल्फ। ओके, सो ये हो गया जो थर्ड ऑप्शन मुझे लगता है एज अ फ्रेशर आपके पास में रहेगा। ओके, जैसे इन नटशेल आई विल कंक्लूड दिस कि फर्स्ट थिंग, start or think something to start yourself. Second, there are multiple platforms, उन platforms के ऊपर आप फ्रीलांसर करके काम कर सकते हो और आपके जो स्किल है उसको आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड थर्ड, अभी आप आपके स्किल्स जो है उसको अपग्रेड कर लीजिए एंड देन फाइंड अ गुड जॉब इन योर एरिया और इन योर थिंग। सो कई सारे लोगों के मन में ये भी होगा कि एक्चुअली सर अभी कौन से फील्ड में हम लोगों ने काम करना चाहिए। ओके, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग अगर काम करते हैं तो हम लोगों को अच्छा बिजनेस मिलेगा। तो
नो डाउट ये वाला जो सवाल है ये काफ़ी अहम है। ओके, और लॉकडाउन की वजह से या जो कोरोना वायरस आया है उसकी वजह से हम लोगों को एक बात तो पक्की पता चली है कि देर आर कपल ऑफ इंडस्ट्रीज़ की इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग वो सर्वाइव हो जाती है। ओके, जैसे मेडिकल फील्ड, तो मेडिकल फील्ड एज एन इंजीनियर आप पैरामेडिकल फील्ड के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट्स सप्लाई करने की सोच सकते हैं या उसके अंदर कुछ काम करने की सोच सकते हैं ऐसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर या ऐसे चीज़ों के अंदर। ये मुझे पहला वाला ऑप्शन लगता है। दूसरा ऑप्शन मुझे लगता है कि आईटी इंडस्ट्री। अभी आईटी इंडस्ट्री के अंदर आई हैव सीन कि मैकेनिकल इंजीनियर भी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी जा रहे हैं वहाँ पे एज एन आईटी इंजीनियर करके, बट आपका जो बैकग्राउंड है वो इलेक्ट्रिकल वाला है एंड यू आर गोइंग इन आईटी इंडस्ट्री, तो मतलब आगे चल के ये वाला सिचुएशन होने वाला है कि बहुत सारे अलग अलग जो आपके स्पेशलाइजेशन है उनको कंबाइन करके ही काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ में आप स्पेशलाइज्ड है तो उस स्पेशलाइजेशन के साथ में आप काम नहीं कर सकते। जैसे सोलर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो सोलर इंडस्ट्री में लोगों को लगता है कि ये वाला जो है इलेक्ट्रिकल वाले का काम है, बट आपको अगर पता होगा, आई डोंट नो, बट इसके अंदर सिविल इंजीनियर का भी काम पड़ता है, इसके अंदर मैकेनिकल वाले का भी काम है, इसके अंदर केमिकल इंजीनियर का भी काम है। सो ये वाला जो चीज़ है एंड इट हैज़ स्टार्टेड बाय द केमिकल इंजीनियर। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड अहम वाला मामला है। सो आप कोई भी इंडस्ट्री अगर आप चुनते हैं तो आपको इंडस्ट्री चुनते हुए ये वाला चीज़ ध्यान रखना है कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, दैट इज़ वन। सेकंड, आप ये देखिए कि इस सिचुएशंस में कौन कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर मेजर इम्पैक्ट हुआ है। ओके, तो जो लग्जरियस चीज़ें थी उसके ऊपर लोग जो है अभी एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं करेंगे। तो जो रिक्वायरमेंट वाली जो चीज़ें, जो डे इन डे आउट मेरे को लगने वाली चीज़ें, ऐसे चीज़ों के ऊपर भले वो लॉकडाउन हो या और कुछ हो उसके अंदर एक्सपेंडिचर तो करना ही करना है। तो ऐसे जो कंजम्पशन वाले जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर आप सोचिए और ऐसे इंडस्ट्री के अंदर काम करने का प्लान बनाइए। और उस इंडस्ट्री के अंदर अगेन इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ आपको स्किल सेट लगते हैं, वैसे स्किल सेट आपके पास में है या नहीं है वो चेक कर लीजिए। इसके अंदर और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिसाइड किया कि मुझे XYZ कंपनी के अंदर जॉब करनी है, तो ट्राई टू फाइंड आउट द पर्सन दोज हु आर वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री और उन लोगों के साथ में कांटेक्ट करके इंटरेक्शन करिए एंड आस्क देम कि मैं आपके यहाँ पे इंडस्ट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट मे बी 3 months 4 months काम कर सकता हूँ क्या। ओके, और उसके वजह से या तो उनके इंटरव्यू लीजिए, इंटरव्यू लेने के बाद में यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि वहाँ में किस टाइप के स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और वो स्किल्स जो है आप डेवलप कर सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये वाला समय, ये वाला टाइम आप खुद को जितना ज़्यादा अपग्रेड करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि ये सारा चीज़ अगर हम लोग साथ में करते हैं तो एक इकोसिस्टम जो है इंडिया में बन जाएगा और वो इकोसिस्टम हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो इसमें और एक चीज़ जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप सभी लोगों के साथ में, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। अभी रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में हम लोगों ने कुछ हद तक सीखा है एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन रिवर्स इंजीनियरिंग। यू नो व्हाई देर इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज डिमांड एज फार एज रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ कंसर्न, बिकॉज चाइना में कई सारे लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे in buying certain things from them, but China has already developed certain infrastructure so that it can serve the global. Okay, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एज अ इंडिया हम लोगों को रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर थोड़ा काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग में जैसे हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, देन विल अंडरस्टैंड द निटिगिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट को लेकर के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा वो हम लोग कर पाएंगे। ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल ऑफ इंजीनियर
एज फार एज रिवर्स इंजीनियरिंग इज कंसर्न। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये वाला एक डिपार्टमेंट सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है, ओके, बट बीइंग एन फ्रेशर आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे चीज़ों के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए जिसके अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप कोई प्रोडक्ट्स जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। अभी हम लोगों का जो डिपेंडेंसी है कई सारे चीज़ को लेकर के, जैसे अगर मैं सोलर की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 65 to 70% हम लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो चाइना के ऊपर है, ओके। तो ऐसे अगर हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ अगर जाते हैं तो हम लोग जो है डिपेंडेंसी उनका ख़त्म कर सकते हैं, और ये एक दिन भी नहीं होगा। सी ये जो है दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान। हम लोग अगर ये कहेंगे कि कल से चाइना से हम लोगों को कुछ इंपोर्ट नहीं करना है, आई हैव सीन सम ऑफ द मैसेजेस लाइक कमिंग, तो इमोशनली हम लोगों को ऐसे लग सकता है, इवन ग्लोबली मेनी कंट्रीज वुड थिंक इन दैट लाइन, ओके। बट अनलेस एंड अनटिल हमारे पास में बैकअप प्लान नहीं होगा तो कोई भी देश जो है वो ऐसा स्टेप नहीं लेगा, ओके। तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काम करके ये सारी चीज़ों जो है उसके ऊपर फोकस करके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर कैसे मैन्युफैक्चरिंग किए जाए उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, ओके। ऑलरेडी देर आर इंडस्ट्री, जैसे ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल हम लोगों का एक इकोसिस्टम बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। बीइंग आई लिव इन औरंगाबाद, तो ऑटो एक्सेलरीज की अगर मैं बात करता हूँ तो औरंगाबाद के आसपास में पहले बजाज आया, बजाज के साथ में फिर मीडियम कंपनीज लाइक वेरॉक इज़ देयर, एंड्योरेंस इज़ देयर, ओके, बड़वे इंजीनियरिंग इज़ देयर। तो ऐसे मीडियम साइज़ की कंपनी आई, उनके बाद में फिर और छोटी छोटी जो कंपनियाँ हैं उनके साथ में आई, तो ऐसे करके एक हब जो है वो बन गया है। वैसे ही हम लोगों को हर एक इंडस्ट्री को लेकर के इस तरीके से काम करना पड़ेगा, और वो काम तभी हो पाएगा जब बीइंग एन इंजीनियर आप रिवर्स इंजीनियरिंग या नया कुछ R&D के लिए कैपेबल होंगे। हम लोगों को ये सारा डेवलपमेंट करते वक्त और भी एक चीज़ का ध्यान रखना है। इतने दिन तक कुछ हद तक हम लोगों ने ध्यान दिया था और कुछ जगह पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, बट सिंस हम लोगों को ये टाइम गैप मिला है, इस टाइम गैप के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम लोग सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग सस्टेनेबल कैसे रहेगी उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, और जो सस्टेनेबल नहीं रहेगा उसको हम लोग हमारे मतलब वर्ल्ड में से हम लोगों का जो डे टू डे यूज़ होता है उन सारे चीज़ों के अंदर से उसको कैसे बाहर निकालेंगे, उसका कोई अगर प्लान बनाते हैं तो डेफिनेटली वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अभी आप लोग बोलेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या? देखो, एक साइड में जो एनवायरनमेंट के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं दे अपोज कि ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्री खड़े करने के लिए कई सारे इंडस्ट्री जो है वो दे विल कट द ट्रीज़, उनको जो मर्जी वो करेंगे, ओके। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इन दोनों का बीच का रास्ता जो है दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब हम लोग नया कुछ सोचेंगे। जैसे कुछ सालों पहले सोलर के बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं था, बट नाउ सोलर इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द सस्टेनेबल एनर्जी एंड वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ों के अंदर या कौन कौन से इंडस्ट्री के अंदर आ सकता है, ऐसा अगर हम लोग सोचेंगे तो हम लोगों का इसका बेनिफिट जो है वो होगा। जैसे मैंने बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका बहुत इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ पे आने वाला है। सेकंड जो चीज़ है वो है रिवर्स इंजीनियरिंग, उसका भी इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में एज एन इंजीनियर हमारे पास में बहुत ज़्यादा आने वाला है। अभी ये सारा चीज़ अगर हम बात करते हैं कि एज एन इंजीनियर कि अभी सब तो बंद रहेगा, सारे चीज़ जो है लॉकडाउन खुलने के बाद में बहुत सारे सवाल जो है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में हो सकते हैं, ओके। तो उन सारे सवालों को सबसे पहले तो आप नोट डाउन कर लीजिए। आपके जो भी सवाल है उन सारे सवालों को आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको क्या क्या लग रहा है इंसान, आपका दिमाग जो है उसको खाली कर दीजिए, ओके। और दिमाग खाली करने के बाद में फिर आप सोचिए कि हाउ आई कैन टेक दिस एन अपॉर्चुनिटी। देखिए, लॉकडाउन हुआ है, माइंड ब्लॉक नहीं हुआ है,
Okay, most of the guys are living a life like as if उनका माइंड जो है वो ब्लॉक हो गया, बट टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी. ओके, दैट इज़ वन. अभी मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, और वो वाला चीज़ जो है आई एम श्योर कि आप सारे लोग उन फेजेस में से गए होंगे. ओके, आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट अ लर्निंग स्टेजेस. ओके, लर्निंग स्टेजेस जो है हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. अभी आप कोई भी चीज़ नई सीखने के लिए अगर जाते हैं तो इनिशियली जो है थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस आता है आपके माइंड की तरफ से. ओके, क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं होता है कैसा है क्या है, कुछ भी आपको आइडिया नहीं होता है, इसीलिए आप रेजिस्ट करता है आपका माइंड. ओके, तो वो वाला जो फर्स्ट स्टेज होता है दैट इज़ कॉल्ड अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. सो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में ये होता है कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री और एनीथिंग अबाउट दैट. सो यहाँ पे आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आपको कार चलानी थी. ओके, आपने सिर्फ कार का नाम सुना था, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ गियर्स होते हैं, ब्रेक कहाँ होता है, एक्सीलरेटर कहाँ होता है, आपको कुछ नहीं पता था. ओके, कुछ भी नहीं पता था, और सिर्फ कार सुना था आपने उसके बारे में. सो वो वाला जो स्टेज था वो आपका पहला स्टेज था. जैसे हमारे यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक कार के हम सुनते हैं, तो ये हमारे लिए पहला स्टेज है इलेक्ट्रिक कार, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. दूसरा जो स्टेज होता है लर्निंग का वो होता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में मतलब मैंने देखा कार किस तरीके से होती है, कैसे खोलते हैं उसको, उसके अंदर नंबर ऑफ गियर्स कितने हैं, एक्सीलरेटर कहाँ होता है, वहाँ पे ब्रेक कहाँ होता है, क्लच कहाँ होता है, ये सारा चीज़ सारे फंक्शंस जो है मुझे कार के पता चले, और कुछ चीज़ें जो है मैंने उसके अंदर के सीखी. सो दैट इज़ द सेकंड स्टेज. ओके, लर्निंग का. थर्ड जो स्टेज होता है किसी भी चीज़ का अगर सीखना है आपको, तो वो थर्ड स्टेज में हम लोग जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस. सो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में क्या होता है, जैसे आप नई नई गाड़ी सीखते हो, जैसे आप गाड़ी सीखते हो तो सामने से कोई अगर गाड़ी आ जाती है तो आप तुरंत से ब्रेक जो है वो दबा देते हो, या तो आपने सामने भीड़ देखी गाड़ियों की तो आप ऑटोमेटिकली आप जो है कॉन्शियसली आप सेकंड गियर डालते हो, फिर और भीड़ लगी तो फर्स्ट गियर डालते हो, और ये सारा कॉन्शियसली होता है. आप कहते हो यहाँ मेरे को अभी सेकंड गियर डालना है, थर्ड गियर डालना है, तो ये आपका कॉन्शियसली होता है. और आज की डेट में जो कई सारे महीनों से गाड़ी चला रहे हैं, अभी आप खुद को पूछिए कि एम आई आस्किंग माई सेल्फ कि मेरे को कौन सा गियर शिफ्ट करना है. अभी मैं खुद को ये कहता हूँ क्या कि मेरे को अभी ब्रेक मारना पड़ेगा? नहीं, बिकॉज वी आर इन द फोर्थ स्टेज एज फार एज कार ड्राइविंग इज कंसर्न, और वो फोर्थ स्टेज है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. तो हमारे ऑटोमेटिक हम लोग जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिए. और ये वाला जो ऑटोमेटिक वाला जो प्रोसेस है ये हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है. तो आप कोई भी चीज़ सीखने के लिए लीजिए, वेदर यू ट्राई टू टेक एनी न्यू स्किल, आप उसको डेवलप करने की कोशिश करिए. कोई एक नया मोबाइल आप लीजिए और उसको आप चलाने की कोशिश करिए, उसके अंदर कोई काम करने की कोशिश करिए. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आप उसके अंदर जो है वो काम करेंगे, और ये वाला स्टेज के ऊपर आप पहुंच सकते हैं. तो ये वाला इन नटशेल मुझे ये कहना था कि सारे जो लोग हैं वो हम लोग ऐसे सारे सिचुएशंस में गुजरते हैं, और इन सारे सिचुएशंस के अंदर हम लोग वेदर वी टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो आप मतलब ये वाला प्रॉब्लम आपको अगर प्रॉब्लम की तरह अगर दिखेगा तो आप उसके अंदर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भी नहीं जाएंगे. लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह अगर देखते हैं, खुद को बढ़ने की लेकर टेक एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो योरसेल्फ, ऐसे अगर आप ऐसे वाला सिचुएशन को देखते हैं तो नो डाउट आपका भवितव्य जो है वो हमेशा आगे रहेगा, एंड यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल इन योर लाइफ. सो आपका ऑकरिंग वर्ल्ड जो है ये भी बहुत ज़्यादा मायने करता है. आप इन सारे चीज़ों का आप ध्यान रखिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स. आप पर्सनली मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं इन एनी रिस्पेक्ट, अगर आपको कभी कुछ लगता है कोई चीज़ के लिए. वंस अगेन आई वुड लाइक टू से to thank you to Sandeep University
to thank you all the professors who have taken this particular initiative and taking this video to all the students. And I really acknowledge and thank you to all the students जो students मेरा ये वाला video जो है वो देख रहे हैं. Thank you so much. Good morning everyone. This is Professor Ankit Kumar Mishra from Sandeep Institute of Engineering and Management. I am coordinator of Student Faculty Development Program. Basically this video, I create this video for elaborating the feedback system for this particular program. Now for feedback system, basically you got a mail from our side at around 11 to 11:30 am. The mail subject will be feedback form link of SFDP on role of engineer in uplifting the industry post COVID-19 lockdown in India. When you open this mail, you come to note that there is two links. One is feedback form link, another is name correction link. So what you have to do is you have to go to the feedback form link. Once you click on feedback form links, another window something like this will open. This is your feedback form. Now what you have to do is you have to submit a email address, then name. Now in name, it is very important to understand that if you open your mail that we have delivered you, in this mail, whatever be the name written over here, this is the name that you have submitted at the time of registration. So you have to go submit, in this form you have to submit this particular name. Suppose if I am not submitting, if I am registered with a name of Professor Ankit Kumar and I am submitting over here just only Ankit Kumar, then what will happen? Suppose I am submitting the mobile number, then after institute name, let's say SIEM, and giving all these answer. I am giving it randomly. You please submit the correct one as per your. Now if I submit, I press the submit, it says that some question still need attention. That means what is that? This particular section is wrong. Now again I am submitting something like Ankit Kumar, okay, ANKITKUMAR, Ankit Kumar in sentence case. Then what happened? Again it will not take. Why? Because over here at the time of registration I used Professor Ankit Kumar in such a manner. So the best way is you just select this name and copy this name, and paste it over here. Paste it over here. So that now if you submit this form, it says now you can see my form is submitted. So once you get this type of window, then you can only ensure that your form is submitted. And after submitting the form, just wait for 2 to 3 minutes and you will see that another mail come from our side, that is something like this. This is the mail. After submitting the form, I got this mail, and in this mail you see there is a certificate. So this is the way how you can generate your own certificate. The structure of certificate is something like this. Okay. Now coming to the second part in the mail, that is name correction. If you want to change your name, now suppose there is some error in your name, there is some error in a spelling of your name while filling the registration form, then what you have to do is you have to go to this link. Now in this link just submit your name
the another form will open, and in this form just go to your email ID, put your mobile number, and now here you have to use the name that is used at the time of registration. So again you have to just go to over here, uh, copy this name and paste it over here, and now whatever with the name you want on your certificate, just type it over here in the in certain format. That is, now I want Ankit Kumar Mishra on my certificate, then submit it over here and press submit. Within 24 hours you got a new feedback form link on your mail ID. Now after submitting that feedback form on that mail, you will get the certificate as the same process I described earlier. So I hope it is clear to all of you regarding the feedback system. Now if still you have any doubt, please mail me, or if I doesn't reply your mail within 24 hours, please call me. You have my number, you have my mail ID. I hope you all enjoy this whole SFDP program. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. I hope that all of you are safe and secure at your home. Myself, Dr. Deepak Patil, Principal, Sandeep Foundations, Sandeep Institute of Engineering and Management, Nashik. Friends, Sandeep Foundations, Sandeep Institute of Engineering and Management, Department of Mechanical Engineering has organized this Student and Faculty Development Program on role of engineers in uplifting industry after COVID-19 with this unique title. On this occasion, I'd like to thank all the participants for their overwhelming response and active participation in entire sessions of this particular program. I'm happy to announce that we got registrations from all over the country, from every sector, like we got registrations from students, faculties, industry personalities, and most important, we got 75 plus registrations from the people working in different government organizations. Friends, the objective behind keeping this student and faculty development program is to understand the major challenges which we are facing after COVID-19 and try to find some probable solutions to meet those particular challenges. As we all are facing lockdowns since last 2 months and following all the guidelines given by government to keep ourselves safe and secure at our home. Meanwhile, some good habits are developed amongst us, that washing the hands on regular basis, keeping social distancing, avoiding contacts, wearing masks, etc. But don't we think that these are only temporary solutions, or these are only the preventive measures to avoid the spread of coronavirus disease? Along with this, lot of challenges are arise because of this particular lockdown. Everything has stopped down, as we all know. The most important challenge which we feel the world is facing now is dropping economy. The entire world's economy has dropped down. Industries are closed. Now, what is the solution on that? Watching on television and getting from news, we came to know that everybody from the society is contributing their level best to fight with the coronavirus and its situations.
As we all know, our health workers, doctors, policemen, government employees trying their level best to cope up with the situation and trying to keep the mankind safe. Scientists are working day and night to find the permanent solution on coronavirus. Then the question arises, what as an engineer I can contribute to this? What is the role of an engineer in this situation and after COVID-19? How we can meet those challenges? To answer all these questions, we have taken this small initiative to organize this student and faculty development program and invited the expertise from the industries to deliver their views and ideas and share their expertise to find out the probable solution on this particular situation. I am very much thankful to all the speakers of this SFDP for sparing their valuable time and putting some light on the situation and trying to give some solutions. Friends, I believe that these challenges will convert into opportunities, and as an engineer, we will prove ourselves best after COVID-19. With this, I'd like to thank all of you for your valuable participation to make this SFDP a grand success. Thank you very much. Dear all, a very good morning to you all. I, Prasad Prabhakar Kulkarni, on behalf of Department of Mechanical Engineering of Sandeep Institute of Engineering and Management, welcome you all on the concluding day of SFDP. I take this opportunity to express my sincere gratitude and thanks to our honorable management for their kind approval and support. I am really grateful to our resource person, Mr. Tushar Chauhan, Mr. Apurva Bapat, Mr. Amol Nitve, Mahesh Patil, Mr. Sanjay Mahajan, Mr. Sujit Chaudhary, Mr. Jayant Khadke, Mr. Nilesh Pawar, Mr. Anil Suradkar, Mr. Manish Jadhav, and Mr. Naresh Pegde. All these great people from different fields of industries join this program as a speaker. I don't have any word to express my gratitude towards them, but really without them such a realistic and beautiful program cannot be possible. I am thankful to all the dear participants across the India. Both faculty and students participate in this program in a beautiful manner. This is our good fortune that we have such a great resource person as well as wise participant. I am really grateful to our respected principal, Professor Dr. D.P. Patil, sir, for their guidance, motivation and kind cooperation. I am thankful to the person who stood firmly behind this program, our beloved HOD, Mechanical, Professor Dr. Anil Dubey. The program was really his idea which becomes real due to his continuous effort and support. I am thankful to my colleague Professor Ankit Mishra, coordinator of this program, for his dedication and effort throughout the program. I am thankful to all the deans, HOD, faculty member and staff member of Sandeep Institute of Engineering and Management for their encouragement, support and cooperation. Lastly, I wish Sarve Sukhinan Santu, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pachantu, Ma Kachit Dukham Apnuyat. With this, hope that everybody will stay home, stay safe and take care of him as well as his family. I conclude here. Thanks to all, thanks to all, thanks to all.